Good morning, student. Welcome in your bio class. So, we will continue chapter 9 biomolecules, where you have read how to analysis chemical compositions, primary and secondary metabolites, third, structure of polysaccharides. You have read already elements present in living and non-living, then constitutions of living tissues. After that, you have read structure of the fat, basic nature of lipids. Now, RNA and DNA, structure of sugar, amino acids, fat, then nitrogenous base, uracil, adenine, guanine, cytosine, primary and secondary metabolites, biomolecules, biomacromolecules. After that, we have discussed about protein, structure of protein, collagen. There are some proteins. The name of protein is collagens, which is intercellular ground substance, ट्राइप्सिन एंजाइम्स के फॉर्म पर, इंसुलिन हॉर्मोन्स के फॉर्म पर, एंटीबॉडीज़ किसके लिए होती है, इन्फेक्शंस के अगेंस्ट वर्क करती है, रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्शंस के लिए, लाइक स्मेल के लिए, टेस्ट के लिए, हॉर्मोन्स के लिए, एंड GLUT4 enable glucose transport into the cell. There are some proteins which has different functions. तो प्रोटीन की बॉडी में यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है. ये अलग अलग वर्क करती है. एंजाइम्स के लिए भी वर्क करती है. बहुत सारी प्रोटीन्स एंजाइम्स के फॉर्म पर हैं. बहुत सारी प्रोटीन हार्मोन्स के फॉर्म पर हैं. There are so many proteins that work as antibodies, so many proteins that work as receptors for sensory organs, sensory receptions like smell, taste, hormones, etc. And one protein that is GLUT, it is enable glucose transport into the cell. तो प्रोटीन अलग अलग फंक्शन करती है. How many proteins are there? There are 20 proteins in our body, and some proteins we take with our diet. Now, polysaccharides. Polysaccharides is carbohydrate. We have already discussed polysaccharides. Polysaccharides basically क्या वर्क कर रहा है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है. लेकिन there are so many polysaccharides which use formations of different cellular organelles, like plant cell wall. It is made up of cellulose. Plant cell wall किससे बनती है, सेलुलोज से. और सेलुलोज क्या है, एक पॉलीसैकेराइड्स है. सेलुलोज कॉम्प्लेक्स हेलिकेज है, ठीक है. और ये किस में वर्क कर रहा है, ये प्लांट सेल वॉल फॉर्मेशन में. formations here you just know how the biomolecules are important in our in or for living organisms, like cotton fiber जो है सेलुलोज का फॉर्म होता है, ठीक है. तो जो सेलुलोज है, सेलुलोज आर मोर complex polysaccharides in nature. Polysaccharide in nature. So these are polysaccharides. It is building block of amino, sugar and chemical modified sugar, glucosamine and acetyl galactosamine
Exoskeleton of the arthropods have a complex polysaccharide. हाँ, chitin. Chitin, it is also complex polysaccharides. क्लियर स्टूडेंट? तो पॉलीसेक्राइड्स भी इम्पोर्टेंट है, इस शुगर के फॉर्म पर है और डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग वर्क करता है। काइटिन जो है ये किस में होता है? ये बेसिकली कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड्स है और ऑर्थोपोड्स का एक्सोस्केलेटन फॉर्म करता है। जितने भी ऑर्थोपोड्स हैं तो ऑर्थोपोड्स में जो एक्सोस्केलेटन है वो फॉर्म होता है। Now, next is nucleic acid. Nucleic acid is a very important. It is type of macromolecules. Nucleic acid क्या है? एक macromolecules है. Macromolecules. It is acid insoluble frictions. क्या है ये? फर्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैक्रोमोलिक्यूल्स, सेकंड एसिड इनसॉल्युबल फ्रिक्शंस ऑफ एनी लिविंग टिश्यूज इन द न्यूक्लिक एसिड। ये बेसिकली कहाँ पर होता है? न्यूक्लिक एसिड द पॉलीन्यूक्लियोटाइड टुगेदर with polysaccharides and polypeptide. These comprises the true macromolecules fractions of any living tissues or cell. For nucleic acid, the building block is nucleotide. Nucleic acid का building block क्या है? Nucleotide. मतलब समझ में आया आपको कि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर न्यूक्लिक एसिड फॉर्म कर रहे हैं। It is building block of nucleotide. Building block of nucleotide. Clear, student? A nucleotide has basically केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स। एक न्यूक्लियोटाइड्स में बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और बहुत सारे केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। वन इज़ हेट्रोसाइक्लिक कंपोनेंट्स, सेकंड इज़ मोनोसैकेराइड्स एंड थर्ड इज़ फॉस्फोरिक एसिड। कौन कौन सा हो गया? फर्स्ट इज़ heterocyclic compounds mean nitrogenous base, second is monosaccharides sugar, third one is phosphate acid or phosphate. Clear? So heterocyclic compounds in nucleic acid are nitrogenous base. heterocyclic, इसको heterocyclic क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, उसमें कई सारे उसमें मॉलिक्यूल्स क्या है? कई सारे मॉलिक्यूल्स से मिलकर फॉर्म है, इसलिए उसको हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। ठीक है? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। नाइट्रोजनस बेस जो है वो किस में इंक्लूड किया है? नाइट्रोजनस बेस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स में। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स नाइट्रोजनस। कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस? एडिनाइन, ग्वानाइन, साइटोसिन और थाइमिन प्लस यूरोसिल। ये दोनों में एनी वन। ठीक है? पहले भी क्लियर कर चुके हैं। यदि डीएनए है तो थाइमिन होगा, आरएनए है तो वो यूरोसिल होगा। इफ डीएनए इज देयर देन द कंपोजिशन विल बी ACGT and in RNA ACGU. क्लियर? तो ये किसके फॉर्म पर है? पिरामिडिन्स के फॉर्म पर और ग्वानाइन के। पिरामिडिन्स के फॉर्म पर हैं और प्यूरिन्स के फॉर्म पर हैं। एडिनाइन और ग्वानाइन प्यूरिन्स है, एडिनाइन और ग्वानाइन ये किस में इंक्लूड किया हुआ है? प्यूरिन्स पर
और cytosine or thymine, it is pyrimidines respectively. Sugar found in polynucleotide is either ribose or it is deoxyribose. जो शुगर है ना, मोनोसेक्राइड शुगर, या वो राइबोस के फॉर्म पर है या डीऑक्सीराइबोस के फॉर्म पर है. न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोस इज डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इसलिए डीएनए को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड कहते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ शुगर. और आरएनए को राइबो न्यूक्लिक एसिड बिकॉज इट्स कंटेन राइबोस शुगर. क्लियर? डीएनए में कौन सी शुगर है? डीऑक्सीराइबोस शुगर, और आरएनए में राइबोस शुगर. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड. ये एक न्यूक्लिक एसिड बेसिकली आपको बता रही है कि ये मैक्रोमोलिक्यूल्स है और इट इज़ बेसिकली नॉन एसिड सॉल्युबल फ्रिक्शंस. एसिड में ये सॉल्युबल नहीं है. सो दिस इज द न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड का वर्क क्या है? न्यूक्लिक एसिड स्टोर एंड ट्रांसफर इंफॉर्मेशंस needed for the synthesis of specific protein that determine structure and function of the cell. सेल का स्ट्रक्चर और फंक्शंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या फंक्शन कर रही है, वो प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है. और ये प्रोटीन क्यों कैसे फॉर्म हो रही है? ये प्रोटीन फॉर्म हो रही है प्रोटीन फॉर्म हो रही है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस. न्यूक्लिक एसिड स्पेसिफाई और स्पेसिफिक प्रोटीन्स को फॉर्म करता है पर्टिकुलर वर्क के लिए. क्लियर? ये इसका फंक्शन हो गया. लोकेशंस क्लियर हो गया कि ये कहाँ पर है. साइटोप्लाज्म में जो आरएनए न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस होता है उसमें ये प्रेजेंट होता है. क्लियर? So this is the structure of nucleic acid. Now structure of protein. Protein is a heteropolymers containing strings of amino acid. Protein किससे बना है? अमीनो एसिड से. Clear? Structure of molecules means different thing in different context. In inorganic chemistry, the structure invariable refer to the molecular formula. Like molecular formula कैसे कैसे find out करते हैं? NaCl, MgCl2. Organic chemistry always write two dimensional views of the molecules while representing the structure of the molecules. जैसे benzene है, naphthalene है. Physical conjure up the three-dimension views of the molecular structure. The sequence of amino acids sequence the positional informations of a protein. अमीनो एसिड्स में की पोजीशन ही डिफरेंट टाइप के प्रोटीन फॉर्म करती है. वेयर इज द फर्स्ट अमीनो एसिड्स, विच इज़ द सेकेंड, एंड सो ऑन. मतलब फर्स्ट अमीनो एसिड्स, फिर सेकेंड, फिर इस तरीके से टर्शरी अमीनो एसिड्स इस तरीके से होता है. इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर. 9.3 फिगर को ये देखना है आप लोगों को. 9. ये स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है. प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ पोर्शंस ऑफ अ हाइपोथेटिकल प्रोटीन. हाइपोथेटिकल प्रोटीन मीन्स ये जो एरो करके दिया है ये इसका ये डायमेंशनल फिगर है और ये इसका स्ट्रक्चरल फिगर है. N and C refer to the two terminates of the every protein. Single letter codes and 3-letter abbreviations for amino acids are also indicated. तो ये इसके स्ट्रक्चर के हिसाब से प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी होते हैं. यहाँ पे 3 दिया हुआ है. सीरीन एस, साइटिन CYS, टायरोसाइन TYR, glutamic acid GLU. There are name of some amino acids. ये amino acids के क्या हैं? नेम है. ठीक है. अदर रीजन ऑफ द प्रोटीन थ्रेड इज फोल्डेड इनटू द अदर फॉर्म्स. इट इज कॉल्ड सेकेंडरी
structure. In addition, long protein chain is also fold up itself like a hollow वुलन बॉल. इट गिव्स अ टर्शरी. ये दिया, ये प्राइमरी का फिगर है, ठीक है. और ये क्या है, सेकेंडरी. सेकेंडरी अमीनो एसिड इस तरीके से एक फोल्ड है, और टर्शरी अमीनो एसिड्स में फोल्ड के अंदर भी फोल्ड है. ये आ गया आपका टर्शरी. इस तरीके से अमीनो एसिड्स का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर होता है. इट गिव्स 3 डायमेंशनल व्यूज ऑफ द प्रोटीन. टर्शरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द प्रोटीन. क्लियर. और ये प्रोटीन बॉडी के लिए बहुत रिक्वायर्ड है, बिल्डिंग ब्लॉक है. बहुत सारी प्रोटीन्स और जो बॉडी में रिक्वायर्ड है, ठीक है, सेलुलर एक्टिविटीज़ के लिए, सेलुलर और जो ऑर्गेनेल्स हैं उनके फॉर्मेशंस के लिए इस तरीके से प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल होती है. बेसिकली प्रोटीन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, वो हम आपको क्लियर कर रहे हैं. फर्स्ट, protein meaning protein is a first well choose by very jealous because of the protein play a very significant role in the structure of metabolism. मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, सिग्निफिकेंट रोल्स. सेकेंड परसेंटेज इसका 12% होता है. कितना परसेंटेज है बॉडी में? 12% ऑफ द सेल कंटेंट्स. 12% of cell contains, they are next to water as a components of the cell. Compositions like insulin आपको क्लियर कर चुके हैं कि इंसुलिन हैज़ 22 और 23 अमीनो एसिड. इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड्स हैं? 22 से 31 अमीनो एसिड्स इन 2 पेप्टाइड चेन्स. स्पाइनिश प्रोटीन Ferredoxin has 97 amino acids and human serum albumin has 582 amino acids. से composition है. एक प्रोटीन जो है वो बहुत सारे अमीनो एसिड से बनता है. 3 एग्जाम्पल्स आपको ऑलरेडी आई हैव गिवन. फर्स्ट इज इंसुलिन. इट इज़ 22 to 31 अमीनो एसिड्स. इंसुलिन में कितने हैं? इंसुलिन क्लियर, इसमें है 22 से 31 अमीनो एसिड्स. इसी तरीके से स्पेनिश प्रोटीन फेरिडॉक्सिन में 97 अमीनो एसिड्स एंड ह्यूमन सीरम एल्यूमिन में 552 अमीनो एसिड्स होते हैं. ठीक है. इट इज़ फॉर्म इन जायंट कैल्प ब्राउन एल्गा. एक ब्राउन एल्गा होता है जिसमें कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है. रेड एल्गा में है कॉन्ट्रस सिप्रस. तो डिफरेंट उसमें अलग अलग वैरायटी की अमीनो एसिड्स होती है. ठीक है ना. अलग अलग सब्सटेंस में अलग अलग वैरायटी की अमीनो एसिड्स होती है. क्लियर. तो ये हो गया इसका अमीनो एसिड्स का प्रॉपर्टी. मैक्रोमॉलिक्यूल्स है. सेकंड रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है. थर्ड, इसमें रीनेचुरलाइजेशन मीन्स कई सारी प्रॉपर्टीज़ है. टाइप्स में फिब्रस प्रोटीन है, फाइब्रोजिन है, ग्लोबुलर प्रोटीन्स है. कंपोनेंट्स ऑफ मॉलिक्यूल्स में कोलेजन्स, ग्लूटोन, ग्लोब्यूलिन्स. These are the components of the protein. Clear. Functions, structural components, cell organelles formation, tissues formation, protective covering. These are the functions of protein. metabolic regulations, फ्यूल के फॉर्म पर, ट्रांसपोर्ट के फॉर्म पर ये यूज़ होती रहती है. ठीक है. विजुअल पिगमेंट्स के मूवमेंट के लिए, डिफेंस के लिए, रॉ मटेरियल, बायोलॉजिकल बफर्स के फॉर्म पर, रिसेप्टर्स मॉलिक्यूल्स के फॉर्म पर, टॉक्सिस के फॉर्म पर, सपोर्ट, ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग्स के
के फंक्शंस को रेगुलेट करती है। इस तरीके से प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होती है, 12% सेल कंटेंट्स का बनाती है। तो दिस इज़ द पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करता है, ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म करती है, ग्लाइसेडिक। अब जो है मोनोमियर्स इन अ पॉलीमर, मोनोमियर्स इन अ पॉलीमर मतलब कि बहुत सारे मोनोमियर्स मिलकर पॉलीमर्स फॉर्म करते हैं। बहुत सारे प्रोटीन पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होकर, अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड से अटैच होकर प्रोटीन फॉर्म करती है, ठीक है। ग्लाइसेडिक ये तो हो गया। थाइमिन, एडिनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस है, हेट्रोसाइक्लिक प्रोटीन है और इस तरीके से ये एक डीएनए के फॉर्मेशंस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। क्लियर? सो दिस इज़ द बेसिकली structure of protein and where it is used. Now we will discuss dynamic state of body constitutions, concept of metabolism. In next video we will discuss 9.9 dynamic state of body constituents, concept of metabolism. So student, here we will finish our video and next video we will discuss state dynamic concept of metabolism. So student, today's from today you can see your copies after I will give you or you will get informations when you can see your copies. आपने अपनी कॉपी में जो भी वर्क किया है यूनिट 1 पर बहुत सारा किसी सोर्स से कॉपी किया हुआ है। आपकी एनसीईआरटी की लैंग्वेज नहीं है और आपकी अपनी ओन लैंग्वेज नहीं है। दिस इज़ योर फर्स्ट एग्जामिनेशंस, सो I just cut your marks, not give complete marks because this is your not own language. But in next exams, I will completely cut your marks if you will cheat or if you will write or if you will copy from other resources. So आप लोग की जो भी उसमें प्रॉब्लम होगी, you just ask me my personal number. Understood? Don't send your problem in the group. You just ask me in my personal number. Thank you, student. Have a nice day.